اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ نیکی اور تقوی کو واضح کر دینے کے بعد ذکر فرمایا حرمت جان کا، یعنی لوگ ایک دوسرے کی جان کے محافظ ہو جائیں، کسی کی جان کو کسی سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ اس کے بعد ذکر فرمایا حرمت مال کا۔ ظاہر ہے یہ دو ہی چیز ایسی ہیں کہ کسی معاشرے میں اگر لوگوں کی جانیں ایک دوسرے سے محفوظ ہو جائیں اور لوگوں کے مال کی لوگ قدر کرنے لگیں، جن کے مال ہیں وہ ان کو پہنچانے لگیں، تو پھر معاشرے میں مکمل امن و امان نافذ ہو جائے گا۔ اس لیے اب ذکر فرمایا جا رہا ہے مال کی حرمت کا، کہ اس مال کی کیسے عزت کی جائے۔ اصل میں دیکھیے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ حرمت مال کا مطلب یہ ہے لوگ ایک دوسرے کے مال کی عزت کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کا حق ایک دوسرے کو پہنچا دیں، کسی شخص کا حق محفوظ ہو، اس کی زندگی میں ایسا قانون ہونا چاہیے، اور اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے جو ورثاء ہیں ان کے حقوق بھی محفوظ ہوں۔ عرب میں جاہلیت میں چونکہ یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو جو زوراور وارث ہوا کرتا تھا، طاقتور ہوا کرتا تھا، وہ لوگوں کی میراث کو ہڑپ کر جایا کرتا تھا۔ خاص طور سے یہ اندیشہ اس وقت اور زیادہ تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اپنے کچھ بچے چھوڑ جائے، اس میں کچھ بچے بالغ ہوں کچھ نابالغ ہوں، تو جو بچے نابالغ ہیں وہ تو یتیم ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کا مال جو ان کے باپ کے فوت ہو جانے پر ان کے حصے میں آنا تھا، یہ تحویل میں آ گیا کسی بڑے بھائی کی یا کسی طاقتور شخص کی فیملی میں سے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹا ہے، ابھی جب بڑا ہوگا تب اس کو مال دے دیں گے، اب اس کے مال میں سے وہ خرچ کرنا شروع کر دے، یا یہ کہ جب یہ شخص کسی قابل ہو جائے، جب بالغ ہو جائے اور اب اس بچے کو اس کا مال لوٹانا ہے تو وہ شخص ردی مال لوٹا دے۔ یہ ہو سکتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص طاقتور ہے اور وہ پوری میراث پر بیٹھا ہوا ہے تو جب وہ بھائیوں کے یا جو اور وارثین ہیں جب ان کے درمیان وہ اس کو تقسیم کرے گا تو اس کا بھی امکانات موجود ہیں کہ اگر مان لیے کوئی گاؤں کی زمین ہے تو وہ اپنے بھائی کو دے دی، شہر کی زمین اپنے پاس رکھ لی، یا گھر کا بٹوارا کیا تو جو حصہ قیمتی نظر آ رہا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ چھوٹا بھائی ہے چونکہ بول نہیں سکتا تو اس لیے اس کو اس نے ردی مال دے دیا۔ تو ان سب کے یہ حالات اس طرح کے تھے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ فجر میں ہم پڑھ چکے ہیں، مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اب آگے جب دوبارہ سے جائیں گے تو پھر پڑھیں گے۔ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو سمیٹ کر، یعنی یہ صورتحال وہاں پر پیدا ہو گئی تھی۔ اسی صورتحال نے تقاضا کیا کہ ایک ایسا قانون دے دیا جائے کہ جس سے لوگوں کے حق محفوظ ہو جائیں اور لوگوں کی تربیت نیکی اور تقوی کے طریق کے ذریعے سے ایسی کر دی جائے کہ لوگ اس قانون کا لحاظ بھی کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک قانون بنا دیا جائے اور اس قانون کو ماننے والے لوگ نہ ہوں یا اس قانون کا لحاظ کرنے والے لوگ نہ ہوں، ان کی تربیت ایسی نہ کی گئی ہو، تو تمام قوانین ہونے کے باوجود بھی تمام قوانین کی روح نکل جائے گی اور آدمی اپنی مرضی سے کام کرنے لگے گا۔ تو دو چیزوں کی بہت ضرورت تھی، ایک تو یہ کہ لوگوں کی تربیت ایسے کر دی جائے کہ لوگوں کے حق کو محفوظ رکھیں اپنے پاس اگر کسی کا حق ہے، اور جب وقت ہو تو وہ حق اس کو لوٹا دیں پوری امانت داری کے ساتھ میں۔
दूसरा ये भी है कि एक ऐसा कानून भी होना चाहिए कि जो लोगों के हक तय कर दे, मुतय्यन कर दे, और फिर लोग इसमें घबराहट में न रहे कि एक शख्स के फौत हो जाने के बाद वो अपने बच्चों के बारे में या वालिदैन के बारे में सोचे कि मेरे बाद में इनका क्या होगा। तो अब चूंकि अभी तक जिस वक्त ये सूरह मुबारका नाजिल हो रही है या ये आयात नाजिल हुई हैं, तब तक माशरा इतना मुस्तकम नहीं था कि उनको वो कानून दिया जाता जो आखिरी कानून विरासत के मुतालिक आया है सूरह निसा में। इसलिए आरजी कानून अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर एक दिया, उसके बारे में आप समझ लीजिए। फरमाया कुतिबा अलैकुम, फर्ज कर दिया गया तुम पर, इज़ा जब, हज़रा आए, अहदकुम तुम में से किसी को, अलमौत मौत आए। यानी जब तुम ये देख रहे हो कि अब तुम्हारा वक्त, तुम में से कोई शख्स ऐसा है कि उसका वक्त मौत का करीब है। ये जाहिर होने लगता है, कभी कभी आदमी किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है या किसी कुछ ऐसे हालात, ज़ईफी की वजह से ऐसे हालात होते हैं कि आदमी ये समझता है कि अब मैं जा सकता हूं। तो उस वक्त जिक्र ये किया गया था, ये हुक्म किया गया था कुतिबा अलैकुम। ये समझ लीजिए कि ये हुक्म मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं, ये अब इसकी सिर्फ तिलावत मौजूद है, इस हुक्म पर अमल मनसूख है। लेकिन चूंकि अब आई हुई है कुरान करीम में, तो आपको पढ़नी तो पड़ेगी और उस सूरत हाल को समझना पड़ेगा क्या है। फरमाया कुतिबा अलैकुम, फर्ज कर लिख दिया गया, फर्ज कर दिया गया तुम पर, इज़ा जब, हज़रा आए, अहदकुम तुम में से किसी को, अलमौत मौत, इन तरह का अगर छोड़े, खैरन कुछ खैर, कुछ माल। फरमाया अगर माल भी छोड़े। अब देखिए दो बात है, मौत तो हर एक शख्स को आनी है, मौत तो हर एक शख्स को आनी है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक शख्स कुछ माल भी छोड़ जाए। इसलिए फरमाया इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, कि जब आए तुम में से किसी को मौत, मौत का वक्त करीब आ जाए, इन तरह का अगर छोड़े, खैरन कुछ माल। खैर जो होती है वो असल में मतलूब व मरगूब चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज अरबी में ये इल्म के लिए भी बोला जाता है, हिकमत और दानाई के लिए भी बोला जाता है, अदल और इंसाफ के लिए भी बोला जाता है। इसी से इसका इस्तेमाल हुआ माल के लिए, माल को भी खैर से ताबीर किया गया। यहां एक बारीक नुक्ता यह भी समझिए कि माल को खैर से ताबीर कर देने से यहां यह भी इशारा कर दिया गया कि माल फी नफ्सी ही कोई बुरी चीज नहीं है, कोई नापाक चीज नहीं है कि जिसका जमा करना या जिसका इकट्ठा करना या जिसका कमाना तुम्हारे लिए कोई गलत बात हो, ऐसा नहीं है। हां, इसको नापाक इंसान बना लेता है खुद, कब, जबकि वो माल को इकट्ठा करता है इस तरीके पर कि कमाने में नाजायज कमाई करना शुरू कर दे, या लोगों के हक अपने माल में रोक ले, या अल्लाह के हक अपने माल में रोक ले। तो ऐसा शख्स अपने माल को नापाक कर लेता है। फी नफ्सिही कोई माल ऐसी चीज नहीं कि जिससे बचा जाए, कोई नापाकी है ऐसी बात नहीं है। एक हदीस का मफहूम है जिसमें फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अपने वारिसों को गनी छोड़ो, यानी मालदार छोड़ो, ये उससे बेहतर है कि तुम उन्हें हाजतमंद छोड़ो और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। तो ऐसा नहीं कि माल का कमाना कोई नाजायज बात है, जायज तरीके से आप माल को कमाइए, लोगों के हक अदा करते रहिए, अल्लाह के हक अदा करते रहिए। तो फिर जाहिर है अल्लाह के हुक्म से अगर आप तिजारत भी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए इबादत में शुमार होगी। फरमाया इन तरह का खैरनिल वसीयतु, तो वसीयत करे, यानी अगर वो माल छोड़ रहा है तो वसीयत करे, लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन और कराबतदारों के लिए। ये आया वो आर्जी हुक्म कि जिसमें ये बता दिया गया कि जब कोई शख्स मौत के करीब आ रहा है तो फिर अब उसको ये चाहिए कि अगर वो कुछ तरका छोड़ रहा है, कुछ माल छोड़ रहा है, तो अपने वालिदैन के लिए और कराबतदार के लिए कुछ वसीयत करे बिल मारूफ, मारूफ तरीके पर। मारूफ का मतलब क्या है? मारूफ होती है एक जानी पहचानी शय, यानी एक ऐसी शय कि जो अदल और इंसाफ की तराजू पर पूरी पूरी उतरती हो, तो भले तरीके पर, मारूफ तरीके पर वो कर जाया करे वसीयत। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक है मुत्तक़ियों पर। फरमाया अल्लाह से डरने वालों के जिम्मे है ये बात,
यानी जिस वक्त ये आयात नाजिल हुई हैं और जब तक सूरह निसा की वो आयात नाजिल नहीं हो गई कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वरसा के हक मुतय्यन कर दिए, इस दौरान हर एक मुसलमान पर यह फर्ज था कि उसको अपने वालिदैन और कराबतदार के लिए कुछ ना कुछ वसीयत करनी होती थी। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये हक है मुत्तकीयों पर, ये जिम्मेदारी है अल्लाह से डरने वालों की। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई शख्स अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है। और अगर उस जमाने में कोई शख्स बगैर वसीयत किए अगर फौत हो जाए तो इसका यह मतलब होगा कि फिर वो अल्लाह का खौफ उसके दिल में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आयात इसका हुक्म मंसूख किया गया लेकिन जुज़वी तौर से इसको बाकी रखा गया। क्या देखिए, यहां पर हुक्म यह किया जा रहा है कि हर शख्स की जिम्मेदारी है कि जब वो फौत होने को हो और वो कुछ माल छोड़ रहा हो तो अपने वालिदैन और कराबतदार के लिए कुछ वसीयत कर दे मारूफ तरीके पर। लेकिन जब वसीयत का कानून आ गया, एक तो ये कि जब तमहीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर। जब ये बता दिया गया कि मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनके वालिदैन के जो छोड़ा गया तरका है उसमें हिस्सा है, वो चाहे कलील हो या कसीर, ये तमहीद आ गई। फिर जब हतमी कानून दे दिया गया जिसमें फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये पूरी आयत जब सूरह निसा में आप जाकर के पढ़ेंगे, जब वो हुक्म आ गया तो ये हुक्म मनसूख हो गया कि अब कोई यानी कोई शख्स, कोई इंसान वारिसों के लिए वसीयत नहीं कर सकता जब वसीयत वारिसों के लिए अल्लाह की नाफिज हो गई। अल्लाह का हुक्म आते ही यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, वसीयत करता है तुम्हें अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में। समझ लीजिए ये आयत नाजिल होते ही ये हुक्म मनसूख हो गया कि अब कोई शख्स अपने फौत होने से पहले अपने रिश्तेदारों यानी उनके हक में कोई वसीयत करे तो इसके फौत होने के बाद जो लोग वारिस होने वाले हैं, वारिसों के हक में कोई वसीयत अब नहीं होती। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जुज़वी तौर पर इस तरह बाकी रखा कि कोई भी शख्स अपने माल के 1/3 तक जायद से जायद अपने फौत होने से पहले किसी ऐसे शख्स के हक में वसीयत कर सकता है कि जो इसके मरने के बाद इसका वारिस होने वाला नहीं है। फर्ज कीजिए आपकी बहन है, अब आपके तरके में वो तो वारिस होने वाली नहीं है और आप चाहते हैं, वो आपकी खिदमत भी करती है, आप चाहते हैं कि मैं उसे कुछ ना कुछ दूं, उसके बच्चों को कुछ दूं, तो अब आपको यह हक हासिल है कि आप 1/3 तक जायद से जायद, 1/3 भी जायद हुजूर ने फरमाया जब वसीयत की इजाजत दी तो फरमाया कि कर 1/3 के मुतालिक कि 1/3 तक कर दो, अगरचे ये भी ज्यादा है। यानी कोशिश ये की जाए कि वसीयत 1/3 से कम कम रहे, 1/3 से तजावुज करनी ही नहीं चाहिए। ये जुज़वी तौर पर रसूलुल्लाह ने इसको बाकी रखा कि हर शख्स को जो चाहे वसीयत करना। इसके लिए ये बात आप समझ लीजिए, हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स वसीयत करना चाहे उसके लिए ये तो मफहूम है कि जो शख्स वसीयत करना चाहे उसके लिए बेहतर नहीं कि वो 2 रात भी ऐसी गुजारे कि उसके पास वसीयत लिखी हुई ना हो। यानी आप समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स वसीयत करना, इसका इंतजार ना करे तो मैं जब फौत होने वाला हूंगा वो तभी मैं जाकर के वसीयत करूंगा। यह है कि अगर आपको वसीयत करनी है, एक तो यह कि अगर कोई शख्स ये समझ रहा है कि मेरे पास इतना माल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मेरे पास कसीर तादाद में माल नहीं है, तो मैं इसकी वसीयत ना करूं, कोई बात नहीं, वो ना करे वसीयत। उसके फौत हो जाने के बाद वारिसों को मिल जाने वाला है सब कुछ जो अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है वारिस। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है वसीयत करना और ये चाहता है कि मैं अपने फौत होने के बाद में कोई, मान लीजिए किसी मदरसे को वो कोई अपना पैसा देना चाहता है, किसी मस्जिद को देना चाहता है, किसी और काम में, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में लगाना चाहता है, कोई और काम करना चाहता है इस तरह, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो, हुजूर ने फरमाया कि उसके लिए बेहतर नहीं कि वो 2 रात भी ऐसी गुजारे कि उसके पास वसीयत लिखी हुई ना हो। तो ऐसे वसीयत लिख लेनी चाहिए। फरमाया हक्कन अलल मुत्तकीन, ये हक है मुत्तकीयों पर। फमन बदलहु, बस जो उसको बदल दे, किसको, वो जो वसीयत की गई है। अब ये हो सकता है कि एक शख्स ने अपनी जिंदगी में कोई वसीयत की किसी शख्स के लिए, अब ये फौत हो गया। अच्छा, जिससे वसीयत की, अब तो खैर रजिस्टर्ड वसीयतों का जमाना आ गया, बहुत आगे चली गई दुनिया, वरना तो लोग जबानी ही उसको वसीयत कर दिया करते थे। अब जिसके सामने वसीयत की है उसकी यह जिम्मेदारी है कि जिस वक्त वो वसीयत नाफिज हो रही हो तब उसमें
उस वसीयत को न बदले, ऐन उसी तरह बता दे कि जिस तरह उस वसीयत करने वाले ने इसको बताया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स ये समझे कि किसी के बारे में वसीयत नहीं की किसी ने, लेकिन उसके फौत हो जाने के बाद में एक शख्स कह रहा है कि साहब मेरे सामने वसीयत उसने की थी कि मेरे मरने के बाद में इतना माल इसको दे दिया जाए, किसी की हमदर्दी में आकर। तो ये भी झूठ, ये भी गलत है। फिर ये जो वसीयत कर दिया उसको भी घटाना बढ़ाना। फरमाया फमन बदलहू, बस जो बदले उसको बाद मा समिअहू, उसके बाद के उसने सुना उसको, यानी उसको सुन लेने के बाद अगर कोई शख्स बदलना, इसका मतलब ये पूरा जो दारो मदार है वसीयत के नाफिज किए जाने का, ये शुहदा गवाहों के ऊपर ही रह गया। जाहिर है ना तो बदलने का कोई गुनाह वसीयत करने वाले को होना, वो तो फौत हो गया वसीयत करके, ना नाफिज करने वाले को होना, इसलिए कि नाफिज करने वाले को ये पता नहीं कि उसने वसीयत क्या की थी। अब जो बीच के लोग हैं जिनके सामने वसीयत की गई थी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आयन उसी तरीके पर बताएं जिस तरीके से वसीयत की गई थी। फरमाया फमम बदलहू, बस जो बदल दे उसको बादमा समिअहू, उसके बाद के उसको सुना उसने, फइन्नमा, सो महज, फरमाया फिर इसके सिवा कुछ नहीं होगा, इस्मुहु, ये उसका गुनाह, किसका? वसीयत को बदलने का गुनाह, अलल्लज़ीना, उन्हीं पर है कि जो युबद्दिलूना, कि जो बदलेंगे उसको। फरमाया इसका गुनाह फिर उन पर पड़ेगा कि जो बदलेंगे उस वसीयत को। इन्नल्लाह समीउन अलीम, यकीनन अल्लाह सुनने वाला है, इल्म वाला है, जानने वाला है। फरमाया अल्लाह सुनता है, अल्लाह ने जो तुमने बदला है वो सुना है अल्लाह तबारक व तआला ने, और अल्लाह जानता है कि तुमने इसको क्यों तब्दील किया। तो फिर अगर कोई ये जुर्म अजीम करेगा तो फिर उसको सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। फरमाया इन्नल्लाह समीउन अलीम, फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्मा अलैहि, फमन खाफ, पस जिसे अंदेशा हो। अब एक शख्स ने वसीयत की, जिसके सामने वो वसीयत हो रही है, जो गवाह मौजूद हैं, उनको ये अंदेशा हो रहा है। देखिए, वसीयत करने वाले से दो में से एक बात का इहतमाल है, या तो वो बेजा जानिबदारी से काम करे, किसी बेजा तरफदारी का, या तो ये किसी बदउनवानी का, और इस्मन, या किसी जुर्म के इर्तिकाब का, यानी किसी की हक तलफी का, फअस्लहा, तो मसालहत करा दे, बैनहुम, उनके दरमियान, फला इस्मा अलैहि, नहीं है इसमें कोई गुनाह उस पर। फरमाया अगर ये शख्स कि जिनके सामने वो वसीयत की गई है वो ये समझ रहे हैं कि वसीयत करने वाला कुछ गलती कर गया, फर्ज कीजिए एक शख्स 1/3 माल से जायद की वसीयत कर दिया किसी के नाम, अब ये समझ रहे हैं कि ये वसीयत गलत हो गई, गैर शरई हो गई, तो इनको अब ये चाहिए कि उन वारिसों को और जिसके हक में वसीयत हुई है उनको बैठाएं। पहली बात तो ये कि अगर ये मौका हो कि वो शख्स खुद मौजूद हो जो वसीयत कर रहा है, उसी की इस्लाह की जाए कि तुम ये वसीयत गलत कर रहे हो, ये गैर कानूनी है। अगर ये अब ये मौका अगर नहीं रहा और वो शख्स फौत हो गया और अब इनके इल्म में ये बात आई, इनको लग रहा है कि हाँ इसमें तो वसीयत में तो बिल्कुल खुला खुला दिखाई दे रहा है कि नाफरमानी हो गई अल्लाह के हुक्म की, तो अब इनको ये चाहिए कि वो उनके दरमियान, यानी खुद ना बदले उस वसीयत को अब भी, बल्कि उन वारिसों को और जिसके हक में वसीयत की गई है उनको बिठा करके ये सुलह कराने की कोशिश करें। ये उन्हें बताएं कि देखिए फलां शख्स ने ये वसीयत की है, तुम्हारे मुनीस ने इनके हक में वसीयत की थी, वसीयत कानून के खिलाफ हो गई, शरई कानून के खिलाफ। तो अब बेहतर ये देखो, अब अगर मान लीजिए कोई ऐसे हालात बने और फिर ये कि अल्लाह के यहां इससे पूछ ले छोड़गी इस बात की कि तू वसीयत गैर शरई क्यों करके आया, तो भाई तुम अपने मुरीस के माल के मालिक हो तो भाई इतना कम से कम उसका ख्याल करो कि वो वहां अल्लाह के अजाब से बच जाए, तो कम से कम इसमें इस्लाह कर लो, तो इसकी गुंजाइश है। फला इस्मा अलैहि, तो नहीं कोई गुनाह उस पर, यानी इसमें उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, गफूरुर रहीम, मग़फ़िरत करने वाला है, रहम करने वाला है। फरमाया अल्लाह तो मग़फ़िरत करने वाला है, रहम करने वाला है। अगर इस तरह के हालात हो तो जब अल्लाह सबको माफ कर देने पर कादिर है, वो सभी को माफ करता है, तो तुम तो इस्लाह की गरज से बदल रहे हो, इस वसीयत को अगर बदल रहे हो और बदल रहे हो उनके आपस के बाहमी मशवरे के बाद, तो फिर इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, तुम ना घबराओ, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, रहम करने वाला है। ये है वो हुर्मते माल का कानून कि लोगों के हक उन तक पहुंचा दें, ये जिम्मेदारी है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं दोबारा से कि ये जो वालिदैन और कराबतदार के हक में वसीयत कर दिए जाने का हुक्म आया, ये आर्जी हुक्म था,
जब माशरा मुस्तहकम हो गया, सूरह निसा की आयत नाजिल हो गई। अब ये हुक्म मनसूख है कि कोई शख्स अपने वालिदैन या अपने होने वाले वारिसों के हक में वसीयत करे, ऐसा नहीं कर सकता। अब वो वसीयत बस इतना जुज़्व इसका बाकी है कि कोई शख्स वसीयत अगर करना चाहे, ये जरूरी नहीं रह गया। अब अगर कोई शख्स चाहता है कि वो किसी ऐसे शख्स के हक में वसीयत कर दे कि जो उसके मरने के बाद उसकी मिल्कियत में मालिक वारिस होने वाला नहीं है, ऐसे शख्स के हक में अगर कोई करना चाहे, जायद से जायद 1/3 कोशिश की जाए, 1/3 से कम रखा जाए। मेरा इसमें मौक़िफ़ यह है कि जो लोग मालदार हैं और वो ये समझ रहे हैं कि मेरे पास माल है और मेरे बाद में मेरी औलाद को परेशानी नहीं होगी, तो वो अपने ऐसे गरीब हाजतमंद रिश्तेदारों के हक में या कोई और किसी फलाह के काम में अपने माल में से कुछ वसीयत कर जाया करें, और जो वसीयत करें बेहतर है कि जल्द से जल्द उसको लिख भी लें। मैंने ये तय किया, थोड़ा बहुत बाकी है, कि हर एक नशिस्त में इंशाअल्लाह मैं 1 या 2 अहादीस आपको सुनाऊंगा, और मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूं इंशाअल्लाह आज ही से, और फजाइल अहले बैत से मैं इसका आगाज करूंगा इंशाअल्लाह। और मेरी प्लानिंग में अहले बैत के फजाइल, खुलफाए राशिदीन के फजाइल, बाकी सहाबा इकराम के फजाइल, जहां तक मेरी जिंदगी साथ देगी और जब तक मैं इस काम को करता रहूंगा, तो इंशाअल्लाह मैं 1-1, 2-2 हदीस आपको बताऊंगा। ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम चंद लोग थे। मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है खुम, वहां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोक लिया और खिताब फरमाया, और फरमाया, ऐ लोगों, आगाह रहो, मैं भी एक बशर ही हूं। करीब है कि अल्लाह का कासिद मेरे पास आए और मैं कबूल कर लूं, यानी मैं लब्बैक कह दूं। यानी इसे यह भी इशारा दे दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वही के जरिए से मालूम हो गया रसूलुल्लाह को कि बस अब इस दुनिया में कम वक्त रहना है। फरमाया, ऐ लोगों, आगाह रहो, मैं भी एक बशर ही हूं। करीब है कि अल्लाह का कासिद मेरे पास आए और मैं कबूल कर लूं। मैं तुम्हारे दरमियान 2 बड़ी बड़ी चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत है, नूर है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब को थामे रखने की, पकड़े रखने की तरगीब दिलाई। बहुत मरतबा फरमाया, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। उसके बाद फरमाया कि दूसरी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं अपने अहले बैत के मामले में, मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं अपने अहले बैत के मामले में, मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं अपने अहले बैत के मामले में। ज़ाहिर है अब हुजूर के पास इस दुनियावी जिंदगी के एतबार से कम वक्त था, और हुजूर को यह बता दिया गया था कि आपके बाद में आपकी उम्मत क्या कुछ करेगी, या उम्मत के चंद लोग। तो हुजूर को इसका एक अंदेशा तो था ही। मुझे फरमाया, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, तुम्हें डराता हूं, अल्लाह का खौफ दिलाता हूं अपने अहले बैत के मामले में। यानी अहले बैत को थामने का नहीं कहा, जैसे कुरान को तो थामने का हुक्म, तो कुरान को पकड़ लो, उसके हुक्म पर अमल करो। अहले बैत के मुतालिक ये कि कहीं तुम बुग़्ज़ अहले बैत में शामिल ना हो जाना। जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते होंगे। एक दूसरी हदीस है जिसका मफ़हूम है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम कि जिसने दाने को फाड़ा और रूह को तख्लीक किया, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यह बता दिया था कि मोमिन ही मुझसे मोहब्बत रखेगा और मुनाफिक ही मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। यानी एक हुदूद के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, बशर्ते कि वो गुलूम की हद तक ना पहुंच जाए, एक हद को क्रॉस ना कर जाए।